Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today we will start chapter number 3, Earth, Sun and Moon. You know that the solar system is made up of Sun and 8 planets. These planets revolve around the Sun, and Moon is the natural satellite of the Earth, and Earth is made up of land, water and air. Okay? Now in this chapter we will learn about Earth and its structure, the Sun, solar system, the Moon, surface of the Moon, phases of the Moon, landing on the Moon and eclipse. The Earth is different from all the other planets. The Earth is made up of land, water and air. It is the only planet on which water exists. Nearly 71% of it is water and rest is land. A layer of air called the atmosphere surrounds the earth. The shape of the earth is just like an orange. The earth is round and slightly flattened at the poles. It appears flat to us because we see only a part of it. आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. उसमें से अर्थ एक अलग प्रकार का प्लैनेट है. अर्थ किसका बना हुआ है? लैंड, वाटर एंड एयर है इसमें. और यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें वाटर है. 71% वाटर है और बाकी के लैंड है. जो हमारी अर्थ के आसपास एयर का जो लेयर है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. और अर्थ का शेप कैसा है? ऑरेंज की तरह. अर्थ राउंड तो है बट उसके पोल्स एकदम स्लाइटली फ्लैटन है, फ्लैट हो रखे हैं जैसे ऑरेंज का होता है. वह हमें फ्लैट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अर्थ का हम एक पार्ट देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. The earth is composed of 3 layers. The outer layer of the earth is called crust. It is made up of hard rocks and has land and water. All living things are found on this layer. The inner layers of earth are the mantle. They are not as hard as crust. These are thick molten rocky layers just below the crust. The innermost layer is core. It is a solid ball mostly made up of iron. It is hotter and is further divided into 2 parts, outer and inner core. अर्थ जो है वो 3 लेयर का बना हुआ है. तो जो सबसे आउटर लेयर है अर्थ का उसे क्रस्ट कहा जाता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. यह एक हार्ड रॉक्स का बना हुआ है और उसमें लैंड भी है और वाटर भी है. इस लेयर में हम सब रहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स यहाँ पर रहते हैं इस लेयर पर. और फिर इनर लेयर है अर्थ का, उसे मेंटल कहा जाता है. वह क्रस्ट से हार्ड नहीं है. यह लेयर क्रस्ट से नीचे होता है और थिक मॉल्टन रॉकी लेयर्स है. उसके बाद इनर मोस्ट लेयर है कोर. इसमें एक सॉलिड बॉल है जो कि आयरन से बना होता है. यह बहुत ही हॉट है और इसके 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर. द सन. The sun is a big ball of very hot gases. The temperature of the sun is very high. The corona is a thin layer of atmosphere around the sun. The diameter of the sun is approximately 13,92,000 kilometers. The sun is huge, which could fit more thousands of planet Earths inside it. It appears small because it is far from us. The sun is the closest star to Earth. It is called a yellow dwarf star and is a medium-sized star because the other stars are too big as compared to sun. The sun is very important to us. It gives us light and heat.
The light from the sun heats the earth and makes life possible. सन क्या है? हॉट गैसेस का बहुत बड़ा बॉल है. सन की जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होता है. और कोरोना मीन्स कोरोना वायरस नहीं, कोरोना सूर्य के एक चारों ओर एटमॉस्फेयर की एक पतली लेयर है, मतलब लेयर है कोरोना. और सन का जो डायमीटर होता है वह 13,92,000 किलोमीटर है. सन बहुत बड़ा है. उसमें उसके अंदर थाउजेंड्स प्लैनेट को फिट कर सकता है. बट वो हमें स्मॉल दिखाई देता है क्योंकि सन हमारे से बहुत दूर है. सन को अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार कहा जाता है और येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है. यह एक मीडियम साइज का तारा है क्योंकि दूसरे तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं. सन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें लाइट और हीट देता है. सन की हीट अर्थ तक पहुंचती है. सूर्य अपने प्रकाश से अर्थ को हीट करता है और लाइफ को पॉसिबल बनाता है. सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, 8 planets together with their satellite and other smaller bodies that orbit the sun. There are many other smaller celestial bodies apart from the planet and the satellites that revolve around the sun. They are comets and asteroids. हमारे सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट के साथ साथ सैटेलाइट भी हैं और बहुत सारी स्मॉलर बॉडीज़ भी हैं जो सन के आसपास घूमते हैं. वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई, जो स्काई में ऑब्जेक्ट होते हैं वह प्लैनेट्स का एक पार्ट हैं. और सैटेलाइट जो सन के आसपास घूमते हैं वो हैं कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. द मोस्ट वेल known comet is the Halley's Comet. It is also known as a periodic comet because it takes less than 200 years to orbit the sun. It can be seen with the naked eye from Earth every 75 to 76 years. जो मोस्ट वेल नोन कॉमेट है हैलीज कॉमेट. इसे एक पेरियोडिक कॉमेट मीन्स आवधिक धूमकेतु भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने में 200 वर्ष से भी कम समय लगता है. इसे हर 75 से 76 साल में अर्थ में नेक्ड आई से देख सकते हैं. The 8 planets according to their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The planets get their names after Greek and Roman gods and goddesses. The planet Pluto is considered the dwarf planet by the International Astronomical Union in August 2006. सन के डिस्टेंस में जो 8 प्लैनेट्स हैं वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ग्रीक और रोमन के देवी देवताओं के नाम पर इन प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं. और जो प्लूटो प्लैनेट्स है वह ड्वार्फ प्लैनेट है. प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने अगस्त 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट बताया. द इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली in 1610 was the first to gaze at Saturn through a telescope. 1610 में गैलीलियो गैलीली एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने वह दूरबीन के द्वारा सैटर्न को देखा, एक छवि देखी. द मून. लुक एट द क्लियर स्काई एट नाइट. You can see the twinkling stars and the brightly shining moon. The moon does not have its own light. It reflects the light of the sun that falls on it. आपने रात को स्काई देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स हैं जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं और मून है जो ब्राइटली शाइन करता है. तो मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. वो कहाँ से आती है? सन के रिफ्लेक्ट से. तो जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है उस पर और फिर मून ब्राइट होता है, मीन्स चमकता है. देयर आर स्मॉल हेवनली बॉडीज कॉल्ड सैटेलाइट्स.
that revolve around the planets. Moon is the natural satellite revolving around the Earth. The radius of the Moon is 1738 km, which is approximately 1/4 of the size of the Earth. It moves around the Earth is an elliptical orbit, जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है हेवनली बॉडीज, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूमता है। मून का रेडियस 1738 किलोमीटर है, मीन्स अर्थ की साइज का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट है। वह अर्थ के आसपास एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, मीन्स ओवल ऑर्बिट में। Moon has a gravitational force which is much weaker than the gravitational force of Earth. This is the reason that the Moon is much smaller in size than the Earth. A person on the Moon weighs about 1/6 of what he weighs on Earth. The distance of the Moon from the Earth varies between 3,56,000 किलोमीटर to 4,07,000 किलोमीटर। मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है। इसीलिए अर्थ का जो साइज है, मून की साइज बहुत छोटी लगती है। और कोई भी पर्सन का वेट मून में 1/6 हो जाता है, मीन्स अर्थ में उसका वेट ज़्यादा होता है और मून पे जाने पर उसका वेट 1/6 हो जाता है, कम हो जाता है। और अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वह 3,56,000 किलोमीटर से 4,07,000 किलोमीटर जितना है।